So what you can see on screen is a photograph of a crane, right? और उसके ऊपर आप एक पुली देख पा रहे हो, and on that pulley we have a rope-like structure which is wound over it. ठीक है? This particular arrangement is called as wire rope. ठीक है? Now let me show you some more photographs. This is another arrangement that can be seen. Just a minute, the image is opening. All right, in the meantime, just a minute. So this is another image that this is the image of gantry crane that you must have seen in the industries that you have visited. इसके ऊपर भी जो एक लगा हुआ है, this is the wire rope drive, and this is the same thing that we'll be studying today. Fine, the design process of this particular thing we'll be studying today. ठीक है? Now let us get into some basics of this particular wire rope drive. Wire rope is a type of cable which consists of several strands of metal wire twisted into a helix. To prove that, let me show you a figure which will explain this point to you. What you can see on screen is a complete wire rope जो आपको right hand side में नाम दिख रहा है. ठीक है? Now if you closely see what is it made up of, सबसे पहले तो एक वायर है. ठीक है? वायर का बनके मिलके एक स्ट्रैंड बना हुआ है, और ये स्ट्रैंड जो है उसको हेलिकली एक कोर के अराउंड ट्विस्ट किया गया है. क्या है? सबसे पहले वायर है, वायर का स्ट्रैंड बना हुआ है, और ये स्ट्रैंड को ये मेन कोर के आजू बाजू हेलिकली इसको वुंड किया गया है. ठीक है? सो दैट टेल्स अस हाउ these wire ropes are manufactured. ठीक है? The term cable is often used interchangeably with wire rope. ठीक है? केबल भी बोला जाता है. इनिशियली रॉट आयरन यूज किया जाता था ये वायर्स को बनाने के लिए, वायर रोप के वायर या फिर केबल्स को बनाने के लिए, बट आजकल स्टील एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है. ठीक है? Fine. Friction between individual wires and strand as a consequence of their twist further compensates for any flaws. Fine. होता यह है कि since these are helically wound and since these wires are made up of strand, इन wires में खुद में एक frictional coefficient अपने को मिलता है, और साथ साथ वो पुली के साथ भी कांटेक्ट में होने के कारण और इसका फ्रिक्शन बढ़ जाता है. So we are bringing in this point just because to tell you that these wire ropes can transmit very large amount of powers over a relatively very long distances, जो आपका गियर ड्राइव, व्ही बेल्ट ड्राइव या फिर फ्लैट बेल्ट से पॉसिबल नहीं है. उतने डिस्टेंसेस पे these wire ropes can transmit the power. Fine. So with that, let me show you some other arrangements in the sense, this is the side view that you are looking at. Let me show you some other views. Now this is a good figure which tells us how these wire ropes are constructed. जैसे कि मैंने बोला था, वायर से स्ट्रैंड बनता है, और ये जो इंडिविजुअल आप देख रहे हो साइड में, ये स्ट्रैंड है, और वो स्ट्रैंड कैसे बने हुए हैं? वायर से बने हुए हैं. ठीक है? नाउ इफ यू सी द फिगर ऑन द लेफ्ट, बीच में इसके कोर होता है, और उसके आजू बाजू जो है वो ये स्ट्रैंड्स लगे होते हैं. नाउ इफ यू काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स, इट इज 1 2 3 4 5 6. सो द डेजिग्नेशन इज 6 strands multiplied by number of wire in each strand. How do we designate the wire ropes? It is designated by number of strands multiplied by number of wires in each strands. Now how many wires are there? 1 2 3 4 5 6 7. Barabar? 1 2 3 4 5 6 7. So the designation of this particular wire rope is 6 by 7. 6 number of strands and 7 wires in each strands. Similarly, let me show you another figure. यहाँ पे आप देख सकते हो कि there are 6 strands, 1 2 3 4 5 6. ठीक है? बीच में जो है वो कोर होता है. So ये कोर के आजू बाजू ये strands wound किए होते हैं. Now if you measure these number of wires in each strands, they will come out to be equal to 19, and therefore designation of this particular cross section
wire rope is 6/19. ठीक है. Now with that, let me show you the PDF, and let us go through that which type of designation is used for what purpose. ठीक है. Now if you go for 6/7, तो ये haulage, rope applications, rope in mines, ट्रामवेज, पावर ट्रांसमिशन इसमें यूज किए जाते हैं. 6/19 वाले हॉइस्टिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, क्रेन्स में यूज किए जाते हैं. 637 जो है वो स्टील मिल राइडर्स, क्रेन्स और हाई स्पीड एलिवेटर्स में यूज किए जाते हैं. अब ऐसा नहीं है कि 6/7, 6/19, 6/37 के ही रोप है. देयर इज अ रोप जिसमें 8 स्ट्रैंड्स होते हैं और हर एक स्ट्रैंड्स में 19 वायर्स होते हैं. सो 8/19 का भी एक रोप आपको आप होता है अवेलेबल. ठीक है. सो विद दैट लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये बेसिक्स हमने कल भी देख लिए थे, तो मैंने थोड़ा सा रश किया ये बेसिक्स में से. लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाउ. ठीक है. बिफोर वी डू दैट, लेट मी टेक यू टू द टेबल नंबर विच इज जस्ट अ मिनट, टेबल नंबर 9-3 if I'm not wrong. Yes, table number 9-3. Let me take you to that particular table number. Okay. This is, I think, table number 9-3. Yes. So rotate view clockwise. So here also you can see the applications. जो application मैंने आपको बोले थे वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है. आपके डेटा बुक में भी आप देख के बता सकते हो कि 6/7 का application कहाँ पे है. तो ये यहाँ पे आखिरी में आपको applications देखने को मिलते हैं. ठीक है. उसके बाद में 619 वाला जो रोप है उसका क्या application है, तो इतने application है. 637 के applications इतने हैं. 819 का ये है. तो इस तरह से आप इसमें भी उस पर्टिकुलर वायर रोप का एप्लीकेशन देख सकते हैं. ठीक है. सो विदाउट स्पेंडिंग मच मोर टाइम ओवर दिस एप्लीकेशन पार्ट, लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. लेट मी जूम द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फॉर यू. Is it visible to you all on your screen? Hello? Yes, sir. Okay. We have 30 students now. I think that is an okay number of students to begin with the problem. Fine, no problem. So let us all study the design process of wire ropes. Okay. So the problem statement goes like, determine the size of a wire rope when a bucket is used to lift the material of 20 kilonewton. So first two lines tell us that we have to design wire rope जब हमको एक बकेट उससे उठानी है, और बकेट से क्या उठाना है, मटेरियल उठाना है जिसका वजन जो है वो 20 किलो न्यूटन है. फ्रॉम अ माइन 300 मीटर हाई. माइन जो है, माइन मतलब जहां से कोयला वगैरह निकालते हैं या फिर जो भी माइनिंग ऑपरेशंस जहाँ पे होते हैं वो माइन बोलते हैं. तो उसका डेप्थ कितना है, 300 मीटर का. वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट इज 9000 न्यूटन. सो मटेरियल उसको 20 किलो न्यूटन का उठाना है. बकेट का खुद का जो वेट है it is 9000 newton or 9 kilo newton, and it is lifted at a speed of 100 meter per minute. बराबर, कितने स्पीड पे उसको उठाया गया, 100 मीटर पर मिनट. and this speed is achieved in 12 seconds from starting. now we all have studied basic mechanics. उसमें से हमको ये पता चलता है कि उसको 100 मीटर, ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है उससे हमको ये समझ रहा है कि 100 मीटर पर मिनट is the final velocity that the bucket achieves. however, the time required for the bucket to achieve this speed of 100 meter per minute is 12 seconds, which means the bucket initially starts from zero speed. So initial velocity is 0 and the final velocity it reaches is 100 meter per minute. Fine. And the time taken is equal to 12. V is equal to u plus at. आपको फॉर्मूला पता होगा मैकेनिक्स का. V is equal to u plus at, where V is the final velocity, u is initial velocity, a is acceleration, and t is time taken. Right? Assume initial slack of rope is equal to 0.2 meter. तो ये given data अपने पास है. given data हम एक बार लिख लेते हैं.
वेट ऑफ द मटेरियल हमने देखा प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 20 किलो न्यूटन था। यूसेज क्या था, माइन में लिफ्टिंग करना है बकेट का, हाइट ऑफ द माइन है 300 मीटर का, वेट ऑफ द एम्प्टी बकेट 9000 न्यूटन है, वेलोसिटी आफ्टर 12 सेकंड, मतलब टाइम टेकन इज 12 सेकंड बट वेलोसिटी इज 100 मीटर पर मिनट, which is equal to 1.67 meter per second. So 100 divided by 60 gives us 1.67 मीटर पर सेकंड। मीटर पर मिनट को हमने डिवाइड बाय 60 करके उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। स्लैक कितना है, 0.2 मीटर। Right? Now let us go to step number 1. In step number 1, what we do is we select type of construction for wire rope as per table number 9-3. It is the same table that I have opened for you. Here what you have to do is, हमने given data में आपने देखा है कि application लिखा हुआ है अलग से highlight करके, आप देख सकते हैं यहाँ पे application लिखा हुआ है। application क्या है, lifting in mine is our application। तो उसके हिसाब से मुझे सबसे पहले तो वायर का कंस्ट्रक्शन सिलेक्ट करना है as per table 9-3. So let us start reading the uses. So most commonly used rope, mine hoist, ठीक है। तो ये माइन हॉइस्ट अपने को पहले ही मिल गया यहाँ पे, तो इट विल बी ओके इफ वी गो विथ टाइप ऑफ रोप या फिर द डेजिग्नेशन ऑफ रोप एज 6/19, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया द स्टैंडर्ड हॉइस्ट रोप फॉर माइन एप्लीकेशन इज 6/19 रोप एंड रिलेटेड पैरामीटर्स आर। नाउ रिलेटेड पैरामीटर्स हैव टू बी रिटन फ्रॉम द सेम टेबल। अब रिलेटेड पैरामीटर में क्या क्या आ गए, रोप डायमीटर कौन से अवेलेबल है। अगर आप 6/19 का रोप डेजिग्नेशन का रोप सिलेक्ट करते हो तो आपके पास रोप डायमेंशंस कौन से अवेलेबल है, अपने पास इतने डायमेंशंस अवेलेबल है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से हम बाद में सिलेक्ट करेंगे। बट ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना हो सकता है 6/19 का, 1.20 dr²। व्हाट इज dr, dr इज रोप डायमीटर। देखो यहीं पे है सब कुछ, हम अपने मन से नहीं कर रहे। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है, FUT इज इक्वल टू 1.20 dr²। वेट कितना है, वेट is 10 to the power minus 3 Newton per meter. So 37 dr² into 10 to the power minus 3 Newton per meter. Wire diameter given by dw is how much, 0.063 into dr. So what you can observe is basically all the values that you see on the right hand side of the rope designation are dependent on rope diameter. ठीक है। So ये सारी चीजें हम लोग एक करके लिख लेंगे। तो हमने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ लिख लिया, वेट लिख लिया, वायर डायमीटर लिख लिया, क्रॉस सेक्शन लिख लिया। शीव साइज में अपने पास दो ऑप्शन है कि मिनिमम 30 dr होना चाहिए और एवरेज वैल्यू 45 dr होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे एवरेज वैल्यू लिख लिया, ठीक है। सो व्हाट यू कैन सी हियर इज इन सॉल्व प्रॉब्लम वी रोट ऑल द पैरामीटर्स दैट आर देयर इन टेबल नंबर 9-3। सो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ FUT से डिनोट करके ये लिख दिया, वेट लिख दिया, वायर डायमीटर लिख दिया। यहाँ पे देखो वेट जो है इंटू 10 to the power minus 3 है टेबल के हिसाब से, तो यहाँ पे भी 37 dr² इंटू 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर लिखा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट 37 dr² मत लिख लेना। वायर डायमीटर लिख लिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेटल लिख लिया, शीव साइज लिख लिया, जो एवरेज वैल्यू है वो, ठीक है ना। इन द सेम स्टेप व्हाट वी डू इज वी फाइंड आउट यूजफुल वेट। नाउ एज पर न्यूमेरिकल व्हाट वी सॉ इज द बकेट हैज टू पिक अप 20 किलो न्यूटन, फाइन, बट व्हाट इज द वेट ऑफ द बकेट इटसेल्फ, 9000 न्यूटन। सो व्हाट इज द टोटल वेट दैट हैज टू बी लिफ्टेड बाय द रोप, what is the total weight that has to be lifted by the rope? It will be equal to weight of the material plus weight of the bucket itself. हम लोग जब सब्जी वब्जी लेने जाते हैं तब वो जो वजन करता है, तब आपने देखा होगा कि अगर उसके पास वो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है तो सबसे पहले वो एक उसके ऊपर एक पतेला रखता है और एक बटन दबा देता है जिससे उसके ऊपर का जो वेट है वो 0 हो जाता है, बराबर। अदरवाइज क्या होगा, हम लोगों को सब्जी के साथ साथ उस पतेले के वजन का भी पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो मशीन को क्या बताता है कि नहीं, आपको ये पतेले को गिनना नहीं है। बट माइन एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, माइन एप्लीकेशन में वायर रोप को थोड़ी समझ रहा है कि इसको अपने को उठाना नहीं उठाना, तो उसको सब ही है, उसको बकेट का भी वेट उठाना है, उसको उसके अंदर के मटेरियल का भी वेट उठाना है, ठीक है। तो इट इज सिमिलर टू लाइक वी फाइंड डिजाइन पावर। डिजाइन पावर कैसे निकालते हैं ना हम, उस हिसाब से भले उसको 20 किलो न्यूटन का वेट उठाना है, बट उसको बकेट भी तो उठानी है। एंड देयरफॉर टोटल वेट, टोटल यूजफुल वेट इज 20 किलो न्यूटन प्लस 9 किलो न्यूटन which is equal to 29 kilonewton, ठीक है। This is the total weight that has to be lifted, right? Now going to step number 2, we select minimum factor of safety from table number 9-5. So let us go to table number 9-5. Let us go to table number 9-5. Now here what you can see is
there is a column for serial number, then there is a column for application and related factor of safety we can get from this table number 9-5. So let us start reading. Application track cable है क्या? नहीं है. Guys है क्या? Guy wires है क्या? नहीं है. Mine shaft है क्या? हाँ. अब mine shaft के अंदर ऑप्शन है up to 150 मीटर्स. नहीं, अपने को न्यूमेरिकल में कितना दिया हुआ है? 300 मीटर्स. तो 150 मीटर वाला एप्लीकेशन अपने को काम का नहीं है. 300 से 600 मीटर का एप्लीकेशन है क्या? कमिंग बैक टू न्यूमेरिकल, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो हाइट है, height of the mine is 300 meter and therefore we will select this application of mine. और रेंज कौन सा लेंगे हम? 300 से 600 मीटर का. तो हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना मिल गया? 7 का. सो 7 इज द फैक्टर ऑफ सेफ्टी वी विल बी यूजिंग. फाइन. सो हमने यहाँ पे लिख लिया सिलेक्टिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी n is equal to 7 फॉर माइन शाफ्ट वर्किंग इन द रेंज ऑफ 300 to 600 मीटर एज पर टेबल नंबर 9-5. सो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया? स्टेप नंबर 1 में हमने टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन किया, रिलेटेड पैरामीटर्स लिखे, उसके बाद में हमने टोटल वेट निकाला. स्टेप नंबर 2 में हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिसाइड किए. एम आई स्टिल ऑडिबल स्टूडेंट्स? जस्ट कंफर्म. एम आई स्टिल ऑडिबल? Yes, sir. ऑलराइट. So let us go to step number 3. In step number 3, you have to calculate trial diameter of rope. You have to calculate trial diameter of rope, and we do it by equating useful load calculated in step number 1 with the breaking strength FUT. ठीक है, इन दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं. तो क्या करने के लिए हमको जो रोप डायमीटर है, जो स्टेप नंबर 1 में आप देख सकते हो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या के ऊपर डिपेंडेंट है? डीआर के ऊपर. डीआर इज व्हाट? रोप डायमीटर. हाइट का के ऊपर, वेट का के ऊपर है? डीआर के ऊपर. वायर डायमीटर डीआर के ऊपर. क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मेटल डीआर के ऊपर. शीव साइज डीआर के ऊपर. ये डीआर निकालना तो जरूरी है, तो हम स्टेप नंबर 3 में डीआर निकालते हैं. नाउ द थिंग आई हैड टू टेल यू, जो मैंने आपके क्लासरूम वॉल पे जहाँ पे नोट्स अपलोड किए हैं वहां पे भी लिखी है कि जो भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए फॉर्मूले है वो फॉर्मूले आपके डेटा बुक में नहीं है. तो ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं. ठीक है, अदरवाइज ऐसा होगा कि आप एग्जाम में फॉर्मूले ढूंढते रहेंगे और आपको सब कुछ याद होने के बाद भी सिर्फ फॉर्मूला याद नहीं है करके आप न्यूमेरिकल नहीं छोड़ा पाओगे. तो ऐसा नहीं करना. तो मूविंग ऑन, व्हाट डू वी डू इन स्टेप नंबर 3 इज वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डीआर. So this is the formula that you use. WU we have calculated in step number 1, which is 29 to 10 to the power 3 into 2 into factor of safety, which is equal to 7, is equal to FUT. Now what is the value of FUT? FUT is 1.20 dr square kilonewton. 1.20 dr square kilonewton. तो यहाँ पे हमने क्या किया? Since we converted this WU from kilonewton to Newton, we converted this 1.20 dr square from kilonewton to Newton. तो यहाँ पे 10 to the power 3 अपन ने multiply कर लिया. And when you solve this equality, we get dr is equal to 18.39 mm. क्या मिलता है अपने को? dr 18.39 mm. Now again going back to table number 9-3, let me rotate the view for you. आप देख सकते हो हमने जो डेजिग्नेशन यूज किया वो 6/19 का डेजिग्नेशन यूज किया. बराबर, हमने कौन सा डेजिग्नेशन यूज किया? 6/19 का. और थर्ड कॉलम जो है वो रोप डायमीटर का dr. Now the calculated value we got was 18.39, but 18.39 अवेलेबल है क्या? 14 के बाद 18 है, 18 के बाद सीधा कौन सा है? 20 है. तो हम 18.39 नहीं ले सकते, हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा 20. ठीक है, so what we do, we select the value of dr equal to 20 as per table 9-3. आप देख सकते हैं यहाँ पे 18.39 हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू आया. नेक्स्ट हायर वैल्यू अवेलेबल इज 20. So we will select the value of dr as equal to 20. ठीक है. हाँ, so देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रेफरिंग टू टेबल नंबर 9-3, सिलेक्टिंग डायमीटर ऑफ रोप dr as equal to 20 mm. हमने इसके हिसाब से 20 mm सिलेक्ट कर लिया और dr की वैल्यू हमने 20 mm ले ली. Now once we have the value of dr, हम इमीडिएटली FUT और जितने भी हमने पैरामीटर स्टेप नंबर 1 में लिखे हुए हैं वो पूरे के पूरे लिख सकते हैं. आप देखो, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, वेट, वायर डायमीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटल, शीव साइज, ये सारे डीआर के ऊपर डिपेंडेंट है. तो हम जैसे ही अपने पास डीआर मिल गया वैसे हम लोग ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. बट फिलहाल स्टेप नंबर 3 में we only calculate the value of FUT, which is given by 1.2 dr square. थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे कि आपको एक चीज आपको ऐसी लग सकती है कि यहाँ पे यूनिट कहीं पे मैच ही नहीं हो रहा है, फिर भी हम कैसे लिखते जा रहे हैं. तो ये सारे एम्पिरिकल फॉर्मूले हैं. ठीक है, इनमें यूनिट आप मैच नहीं करा सकते. नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू स्ट्रेस आउट इज, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है 1.20 dr स्क्वायर.
वेराज इसको अपन ने ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोला हुआ है और उसका यूनिट किलो न्यूटन है, ठीक है। तो आपको सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखना है कि dr की वैल्यू mm में लोगे आप, और 1.2 और dr की वैल्यू mm में रखने के बाद आपको जो वैल्यू मिलेगी वो किलो न्यूटन में मिलेगी। ये चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैंने 20 स्क्वायर लिख लिया और उसको न्यूटन में लिख लिया वैल्यू, नहीं। ये जो फॉर्मूला है 1.2 dr स्क्वायर, ये अपने को FUT, दिस इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ ब्रेकिंग स्ट्रेंथ FUT इन टर्म्स ऑफ किलो न्यूटन, एंड देयरफॉर यहाँ पे mm में वैल्यू रखने के बाद भी हम जो FUT की वैल्यू रखेंगे वो किलो न्यूटन में रखेंगे, ठीक है। कमिंग टू स्टेप नंबर 4, वी कैलकुलेट वेट ऑफ वायर रोप। अगेन एज पर स्टेप नंबर 1 हम लोग वायर रोप का फॉर्मूला देखते हैं। वायर रोप का फॉर्मूला देखिए आप, इसमें क्या है, वायर रोप के वेट का फॉर्मूला 37 dr स्क्वायर इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। कैसा वेट है इसका, 37 dr स्क्वायर इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। दैट मीन्स न्यूटन पर मीटर मतलब वेट पर यूनिट लेंथ, न्यूटन पर मीटर मतलब वेट पर यूनिट लेंथ। सो 37 dr स्क्वायर इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। सो 37 इंटू dr कितना है 20, वो अपने को मिलता है 14.8 न्यूटन पर मीटर। ये है वेट ऑफ द वायर रोप per unit length. What is this? This is weight of the wire rope per unit length. But how long wire rope should be? How long wire rope should be? It should minimum be equal to 300 mm, which is equal to height of the mine. बराबर, हाइट ऑफ द माइन कितनी है अपनी 300 मीटर की है, तो कम से कम आपका वायर रोप 300 मीटर का होना चाहिए, बराबर। तो अगर वेट पर यूनिट लेंथ अपने को 14.8 न्यूटन पर मीटर मिल रहा, तो ये वेट पर यूनिट लेंथ को हम टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद हम लोग इसका टोटल वेट निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर वो पुली के ऊपर बराबर उतना ही वायर रोप रहता है क्या? तो ये जो हमने स्टेप में वेट कैलकुलेट किया, ये मिनिमम वेट है, मतलब इतना तो कम से कम रहेगा, ठीक है। दिस इज द मिनिमम वेट, इतना तो कम से कम रहेगा। अब 300 मीटर का माइन शाफ्ट है, इसलिए बराबर 300 मीटर का ही अपने पास वायर रोप अवेलेबल रहेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट सिंस इन द एप्लीकेशन इट इज गिवन कि अपने पास 300 मीटर की हाइट है, तो हम सॉल्व करने के लिहाज से यहाँ पे 300 मीटर का लेंथ लेंगे, और हम लोग अगर वेट पर यूनिट लेंथ 14.8 निकाल रहे हैं तो टोटल वेट हमको वेट पर यूनिट लेंथ को टोटल हाइट से मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा, विच इज इक्वल टू 4.44 किलो न्यूटन, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 300 मीटर का ही हमने वायर रोप यूटिलाइज किया हुआ है, ठीक है। ऐसा आप कंफ्यूजन मत रहने दीजिएगा, बट ये सॉल्व करने के लिहाज से हमको एक W की वैल्यू यहाँ पे लिखनी पड़ती है, जो हमने लिखी। नाउ गोइंग टू स्टेप नंबर 5। इन स्टेप नंबर 5 यू हैव टू कैलकुलेट बेंडिंग लोड FB एज पर टेबल नंबर 9-7। लेट अस गो टू टेबल नंबर 9-7। Yes, in table number 9-7 we have the formula for bending load given by FB is equal to 84 into 10⁻³ multiplied by A multiplied by DW divided by DS। अब अपने पास A नहीं है अवेलेबल, DW वायर डायमीटर है, A एरिया ऑफ मेटल है, DS शीव डायमीटर है। नाउ इफ आई टेक यू टू स्टेप नंबर 1, आप देख सकते हो अपने को DW, A और DS चाहिए। अब DW इज वायर डायमीटर विच इज गिवन बाय 0.063 dr, cross sectional area of metal is A given by 0.38 dr square mm square, and sheave size DS is 45 dr given in mm। तो ये तीन वैल्यूज हम लोग स्टेप नंबर 5 में कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, so that we can put it in the formula for bending load। so A is given by 0.38 dr square as per step number 1, so अपने को मिलता है 152 mm square। DS जो है शीव डायमीटर वो अपने को मिलता है 45 dr which is 900 mm। DW is wire diameter given by 0.063 dr, so we get it as equal to 1.26, and when we keep all these values of A, DS and DW in the formula for bending load FB, we get the value of FB as equal to 17875.2 Newton। So 17,875 Newton, 0.2 Newton is the value of bending load that we get। Moving to step number 6, we have to calculate load due to acceleration। Now you will ask me, सर बेंडिंग लोड तो समझ में आ रहा है कि वायर रोप जो है अपना बेंड हो रहा है, बट ये लोड बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन करने की जरूरत क्या है? तो इसका आंसर ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पे आते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है? इट इज लिफ्टेड एट अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर मिनट एंड दिस स्पीड इज अचीव्ड इन 12 सेकेंड्स। दैट मीन्स ये जो बकेट है ये एक्सेलरेट हो रही है,
इसको 12 सेकंड लगे 100 मीटर पर मिनट के स्पीड पे आने के लिए, दैट मीन्स द बकेट इज एक्सेलरेटिंग, और एक्सेलरेशन की वजह से इस पे लोड्स आते हैं, दैट लोड नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। तो उसका ये जो फॉर्मूला है, फिर से मैंने बॉक्स करके रखा हुआ है, ये जो बॉक्स है, बॉक्स वाले फॉर्मूले हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है, रिमेंबर द फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला आर नॉट अवेलेबल इन द डेटा बुक, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। So here what do we have to take care of? We have to take care of WU, we have to take care of WR into F divided by 9.81। क्या है ये? WU plus WR into F divided by 9.81। अब इसमें F क्या है? F है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है क्या? नहीं। हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे V is equal to U plus 80 से, वो फॉर्मूला यूज करके V is equal to U plus 80, ये फॉर्मूला मैकेनिक्स वाला यूज करके हम F निकालेंगे। WU की वैल्यू अपने पास अवेलेबल है। WR क्या होता है हम देखते हैं ना। V इज इक्वल टू यू प्लस 80 वाला फॉर्मूला यूज करके हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। ये फॉर्मूला कोई याद करने वाला फॉर्मूला नहीं है, आपको पता है, एंड देयरफॉर मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। V इज इक्वल टू V इज इक्वल टू F प्लस UT, ये फॉर्मूला हमने यूज करके यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लिया। जो V अपनी फाइनल वेलोसिटी है, जैसे कि मैंने बताया था, फाइनल वेलोसिटी कितनी है न्यूमेरिकल में, मैं और एक बार दिखा देता हूँ आपको। फाइनल वेलोसिटी कितनी दी हुई है? 100 मीटर पर मिनट, और 100 मीटर पर मिनट के लिए इसको 12 सेकंड लगे, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी वाज 0, सो फाइनल वेलोसिटी इज 100 मीटर पर मिनट, जो उसको अपन ने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 1.67 मीटर पर सेकंड मिला अपने को। इनिशियल वेलोसिटी इज 0 डिवाइडेड बाय टाइम विच इज इक्वल टू 12, सो अपने को ये मिल गया। WR इज वेट ऑफ द रोप, WR इज वेट ऑफ द रोप, ये यहाँ पे जो W लिखा हुआ है ये WR है विच इज 4.44 किलो न्यूटन, ठीक है। सो यहाँ पे हमने वो वैल्यूज लिख लिए। 29 × 10⁻³ जो WU है यूजफुल वेट, WR जो है वो वेट ऑफ द रोप है, वो हमने लिख लिया, और उसको मल्टीप्लाई कर लिया हमने एक्सेलरेशन से, और उसको डिवाइड कर लिया 9.81 से, ठीक है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अपने को 516.46 न्यूटन इतना अपने को एक्सेलरेशन की वजह से जो उसके लोड लग रहा है वो कैलकुलेट हो जाता है, जो किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के बाद 0.516 किलो न्यूटन अपने को मिलता है, ठीक है। यूनिट्स का ध्यान रखने का है, यहाँ पे WU जो है उसको न्यूटन में कन्वर्ट किया है, WR जो है वेट ऑफ द रोप उसको भी न्यूटन में कन्वर्ट किया गया है, एंड दैट्स व्हाई जो आंसर अपने को मिलता है वो न्यूटन में मिलेगा, ठीक है। जो ये 0.139 जो एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन के वजह से जो उसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो एक्सेलरेशन जो लग रहा है उसके ऊपर वो 0.139 है, उसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये भी अपने को यूनिट का भी यहाँ पे ध्यान रखने का थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अपने को जो फोर्स ड्यू टू एक्सेलरेशन मिलेगा वो न्यूटन में मिलेगा, ठीक है ना। इन नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू कैलकुलेट द स्टार्टिंग लोड विथ अ स्लैक ऑफ h। क्या कर रहे हैं हम लोग? यू हैव टू कैलकुलेट स्टार्टिंग लोड विथ अ स्लैक ऑफ h given by FST. FST stand for starting load. So it is given by W plus WR 1 plus ब्रैकेट में 1 plus 2EH divided by L into sigma ST, ठीक है। ये भी फॉर्मूला आपको याद रखने का है, हमको अब तक थोड़ी सी आदत हुई नहीं है फॉर्मूला याद रखने की, बट इफ यू हैव टू सॉल्व दिस वायर रो प्रॉब्लम इट इज अ मस्ट दैट यू रिमेंबर दिस फॉर्मूले, ठीक है। अब WU क्या है पता है, WR अपने को पता है, E जो है वो यंग्स मॉड्यूलस है आपके रोप मटेरियल का, H जो है वो स्लैक है जो दिया हुआ है, L हमको पता है, L मतलब लेंथ ऑफ द वायर रोप है जो हमने 300 मीटर ली है। सिग्मा ST क्या है? सिग्मा ST इज गिवन बाय WU plus WR डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिग्मा ST इज गिवन बाय WU plus WR डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। सो 29 plus WU is 29, WR is 4.44 divided by cross sectional area is 152. So अपने को 0.22 into 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर ये सिग्मा ST की वैल्यू मिलती है। When we keep all these values in FST, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये भी किलो न्यूटन में है, ये भी किलो न्यूटन में है। यंग्स मॉड्यूलस अपने को ये स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है 84 into 10⁻³, ये वैल्यू भी याद करने वाली वैल्यू है, या फिर आप डेटा बुक में ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगी ये वैल्यू, बट याद भी रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 84 into 10⁻³ ये जब मिल जाएगा उसके बाद में हमको FST भी मिल जाता है, ठीक है। सो बेसिकली सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हाउ वी आर अप्रोचिंग दिस प्रॉब्लम। सबसे पहले तो अपने को क्या बोला गया है, हमको ये बोला गया है कि डिटरमाइन द साइज ऑफ द वायर रोप। अब आप बोलोगे सर साइज ऑफ द वायर रोप तो हमने पहली स्टेप में कैलकुलेट कर लिया, देखो यहाँ पे 6/19 इज द साइज ऑफ द रोप, खत्म बात।
तो देखा जाए तो यहाँ पे न्यूमेरिकल खत्म हो जाना चाहिए, बट इसके बाद जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, इसेंशियली हम ये कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट दिस वायर रोप विल सफाइज द पर्पस, एंड मोर प्रिसाइजली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमने 7 लिया हुआ है वो सफाइज करता है कि नहीं करता है। ठीक है, सो यहाँ तक कि हम लोग पहुंच गए, यहाँ तक कि आपको काफी सारे फॉर्मूले याद करने हैं। पहला तो ये W प्लस डब्ल्यू आर इंटू एफ डिवाइड बाई 9.81, उसके बाद में W प्लस डब्ल्यू आर इंटू 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस 2ES डिवाइड बाई L इंटू ST सिग्मा ST, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये पूरा का पूरा अंडर रूट में रहेगा। उसके बाद में हम लोग, ये तो हमारा एज्यूम्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी था 7 वाज आवर एज्यूम्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज पर द टेबल। नाउ वी कंफर्म दैट वैल्यू ऑफ सेफ्टी, वी कंफर्म दैट वैल्यू ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी। अब ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है कंफर्म करने का काम, ये हम 3 फेजेस में कंफर्म करते हैं। 3 फेजेस में हम लोग इसको कंफर्म करते हैं। सबसे पहले जब बकेट रेस्ट में हो और वहां से हम उसको उठाना चालू कर रहे हैं, व्हेन द बकेट इज एट रेस्ट एंड वी आर पुलिंग इट अप फ्रॉम द रेस्ट। सेकंड फेज जब वो एक्सेलरेट कर रही हो, ठीक है, जब वो एक्सेलरेट कर रही हो तब वो कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसको एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद फेज 3 जब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक्सेलरेट कर रही हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो। ये 3 फेजेस में हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है वो चेक करते हैं। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का फॉर्मूला क्या है? अगेन दिस फॉर्मूला you just have to report these values, starting from rest। फॉर्मूला इज FUT upon FST plus FB। FST हमने कैलकुलेट किया हुआ है 74.51 किलोवाट। उसके बाद में क्या बोला हुआ है? FB हमने कैलकुलेट किया हुआ है। FB इज व्हाट? वेयर इज द वैल्यू ऑफ FB? जस्ट अ मिनट, ये देखो FB अपन ने बेंडिंग लोड कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, सो यू हैव टू पुट दिस वैल्यूज एंड कैलकुलेट द फैक्टर ऑफ सेफ्टी which comes out to be equal to 480। just a minute, what is the value of FST? 74.5 और ये 17.875। 74.5 plus 1 plus 17.875 and 480। अरे आंसर कितना आया था? just a minute, 74.51 plus 17.875, ये आता है 92.38 डिवाइड बाय 92.38, ये आता है 5.19 जो आपके सामने दिख रहा है। उसके बाद में फेज 2 का फॉर्मूला है अपने पास FUT डिवाइडेड बाय WU WR प्लस FB प्लस FA। तो ये जब हम कैलकुलेट करते हैं 480 डिवाइड बाय WU WR FB FA, तो ये 9.26 आता है। फेज 3 जो है वो मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला है, उसका फॉर्मूला FUT डिवाइडेड बाय WU प्लस WR प्लस FB है। अब आप देखोगे तो इसमें ये फॉर्मूले याद रखने का थोड़ा अगर मैं आपको तरीका बताने की कोशिश करूं, तो जब रेस्ट में है तब वायर के ऊपर कौन से लोड्स आ रहे हैं आप देखो। वायर के ऊपर तब जो लोड्स आ रहे हैं वो है स्टार्टिंग लोड आएगा सबसे पहले और बेंडिंग लोड आएगा। देखो अपन ने 3 लोड की वैल्यूज कैलकुलेट की है, बेंडिंग लोड, एक्सेलरेशन का लोड और स्टार्टिंग लोड। तो अब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कर रहा है तो कौन से 2 लोड आएंगे? एक्सेलरेशन वाला तो नहीं आएगा बिकॉज इट इज जस्ट अ मोमेंट इनटू स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो एक्सेलरेशन वाला नहीं आएगा। तो आएगा सिर्फ स्टार्टिंग लोड और बेंडिंग लोड, तो हमने वो यहाँ पे कंसिडर किए। उसके बाद में जब वो एक्सेलरेशन से मूव हो रही है तब वेट ऑफ द बकेट, उसके बाद में बेंडिंग लोड और एक्सेलरेशन आएगा बराबर। यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वाला आया क्या? नहीं आया। और उसके बाद में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो चल रही है तब सिर्फ WU और WR आएगा, उसमें एक्सेलरेशन वाला नहीं रहेगा, सिर्फ बेंडिंग रहेगा। सो बेंडिंग वाला तीनों इसमें आ रहा है। जो स्टार्टिंग लोड की वजह से जो स्टार्टिंग लोड आता है वो सिर्फ फर्स्ट फेज में आ रहा है, एक्सेलरेशन सिर्फ सेकंड फेज में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें अपने को कंडीशन क्या चेक करनी है? कंडीशन ये चेक करनी है अपने को कि N2 और N3 जो है, यहाँ पे लिखा नहीं है, N2 और N3 जो है वो हमारे जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उससे ज्यादा आनी चाहिए, जो एज्यूम्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उससे ज्यादा आनी चाहिए। और जो N1 है वो हमारे एज्यूम्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी के आधे से ज्यादा आना चाहिए। क्या एक्सपेक्टेड है? द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ N2 एंड N3 दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी
while accelerating and factor of safety while moving with uniform velocity should be greater than the assumed value of the factor of safety that we took, बराबर. And the second condition it needs to satisfy is जो n1 है, n1 मतलब starting from rest वाला जो factor of safety है, it should be greater than half of the factor of safety that we assumed. Fine. ये फॉर्मूले कहाँ से आए? ये फॉर्मूले एम्पिरिकल है, ठीक है. These are derived, or these are not derived, sorry. These are the formulae which are based on the experience, ठीक है, and that's why these are called as empirical formulae. So ये कंडीशन है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, हमारी केस में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. द फैक्टर ऑफ सेफ्टी दैट वी टुक वाज 7 and yes, the value of n2 and n3 are above the value of 7, which is 9.26 and 9.35, and whereas the factor of safety as per the phase 1 came out to be equal to 5.19, which is greater than half of the velocity that we assumed. हमने 7 assume किया था, उसका half 3.5 होता है, 5.19 3.5 से ज्यादा बड़ा है, ठीक है. So we will take a break of 15 minutes. All right. So what we checked in step number 8 is we saw whether the calculated value of factor of safeties are greater than the ones we assumed, and for the phase 1 factor of safety, that factor of safety should be greater than half of the factor of safety that we assumed. So case step number 8 is fine with us. In the next step, what we do is we calculate the drum diameter. We calculate the drum diameter, and for that we use this formula. Just let me open. So sheave diameter or drum diameter should be, as a general rule, it should be greater than or equal to 300 to 500 times dW. जो sheave diameter होता है, drum diameter, it should be greater than 300 to 500, 300 से 500 के बीच के dW जो है उससे ज्यादा या फिर ज्यादा इक्वल होना चाहिए. नाउ ds we already have calculated, what you can tell from the past steps. ds we already have calculated and that value is equal to 900 mm, ठीक है. Now let us check once again, ठीक है. ds जो हमारा calculated है, it should be as per what does this step tells us. ds जो है should be greater than equal to 300 से 500 dW. तो हम लोग outer most range के लिए चेक करते हैं 500 dW के लिए. Now if I calculate 500 into dW, we get 630, whereas the calculated value we have is 900. What is that value? See, the calculated value for ds is 900 mm, and this design check is must कि एक जनरल चेक जो होता है आपके शीव डायामीटर पे वो काम करता है कि नहीं है करके, ठीक है. सो यस, ये जो कैलकुलेटेड वैल्यू है 500 dW जो हम लोग अपर लिमिट लेके सॉल्व करते हैं एज पर टेबल नंबर 9-8, अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो वैल्यू उससे ज्यादा रहनी चाहिए, ठीक है. तो ये 630 है, अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू 900 है, एंड हेंस ओके. नेक्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड आउट इज यू हैव टू कैलकुलेट the length of the drum, means the circumference of the drum. यहाँ पे length word गलत यूज किया गया है, it should be circumference of the drum. And circumference we calculated by pi ds. ds we know, we have calculated it earlier, it is equal to 900 mm. So the circumference we have available on drum is pi into ds, that is sheave diameter, which is equal to 900 mm. तो अपने को मिलता है 2.827 मीटर. कितना मिलता है अपने को? 2.827 मीटर. The next thing we have to calculate is how many number of turns will be there on the sheave. Now to help understand this, let me open the photograph that I had shown you earlier. आप ये फोटो अगर देखते हो तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो ड्रम है उसके ऊपर कुछ नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिख रही है, ठीक है. ये जो ड्रम है उसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिख रही है. दिस नंबर ऑफ टर्न्स हैव टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है. Now the total height available is 300, बराबर, whereas the circumference available on drum is 2.827. इसका मीनिंग ये होता है कि 300 का जो लेंथ है अपने पास वायर का, वो लेंथ ये ड्रम के ऊपर कितने टर्न्स में पूरा का पूरा आ जाएगा वो कैलकुलेट करना पड़ता है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सर्कमफरेंस अवेलेबल कितना है और टोटल अपने पास लेंथ ऑफ द वायर कितनी है. लेंथ ऑफ द वायर 300 है, उसको जब हम सर्कमफरेंस से डिवाइड कर देंगे तब अपने को नंबर ऑफ टर्न्स मिलती है 106. कितनी नंबर ऑफ टर्न्स मिलती है?
106। दैट मीन्स ये कैलकुलेट करने का मीनिंग ये है कि अपने पास 106 नंबर ऑफ टर्न्स के लिए यहाँ पे प्रोविजन करना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या है, 106 नंबर ऑफ टर्न्स के लिए अपने को यहाँ पे प्रोविजन करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट डज इट से इन द नेक्स्ट स्टेप, जनरली देयर मस्ट बी 2 टर्न्स लेफ्ट ऑन आइदर एंड ऑफ द ड्रम, दोनों तरफ, इस तरफ भी, जो ड्रिवन साइड है उस तरफ भी और ड्राइविंग साइड पे भी। एक्सट्रीम वो ओपन हो जाने के बाद भी, पूरी तरह से वो ओपन हो जाने के बाद भी यहाँ पे 2 टर्न्स बची हुई रहनी चाहिए और यहाँ पे 2 टर्न्स बची हुई रहनी चाहिए, और वो 2 टर्न्स हम 106 नंबर ऑफ टर्न्स में ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द ड्रम, इट शुड बी 106 प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 110। सो नंबर ऑफ टर्न्स कैलकुलेशन अपना आता है 110 का। नाउ इन द सेम स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज you have to calculate rest of the dimensions of the drum, rope sheaf and drum proportions। अब इसमें क्या आता है, R आ जाता है, इसमें ये जो आपका वायर का जो ये है रेडियस वो आ जाता है, C आ जाता है, उसके बाद में अल्फा तो दिया ही हुआ है, ड्रम प्रोपोर्शन में आपको पिच कैलकुलेट करना है, T1 कैलकुलेट करना है और T कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जब आप कर देते हो, आपने ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, ऐसा फिर हो जाता है। ठीक है, पिच